in touch with ISKCON Chapati group. We have all entire program. Everybody will come there They and do actually kirtan. have programs on weekdays. A lot of their programs are on weekdays. मुझे बहुत गुस्सा आता है. So everybody comes to ISKCON Chapati. coming to ISKCON Chapati also, it's very obvious that I will be coming over there. When you come for Kirtan there, then I'll catch up. Kirtan is too good. Hare Krishna. Nilesh Prabhu, JV is waiting for you. Definitely. GV once a year, like in this winter, Yes. mandatory. Beautiful place. Very nice. Govardhan Eco Village. Hare Krishna. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। Hare Krishna. So welcome all of you. So we are studying Srimad Bhagavad Gita chapter number 3. In third chapter we completed till verse number 16 last time. So the theme of the third chapter is Karma Yoga. what was Arjuna's question at the beginning of the third chapter? क्या प्रश्न था अर्जुन का? Why should we fight? Then what should he do? Not fight, then what he is supposed to do? First learn Bhagavad Gita and then be prepared to He is fight. supposed to go to GEV. Hare Krishna. His question was whether the Karma Yoga is better or Jnana Yoga is better. Basically, he was trying to escape his duties by giving excuse of how Jnana Yoga is better than Karma Yoga. Because by doing some karma in this world, we get entangled, right? But he didn't know that when karma offered in the service of the Lord is not entangling but is liberating. When we do our activities by keeping God in our center of our life, then all our actions, they are liberating, not binding. बराबर है? तो वर्स नंबर 1 to 9 from verse 1 till verse 9 Krishna tried to explain how Karma Yoga is better than Jnana Yoga, especially for you Arjun, because you are already a household person, you are already a Kshatriya, you are already living in the world, so better you perform Karma Yoga. And then from verse number 9 till 16 Krishna described, okay, if you think that you are not fit for Karma Yoga, then perform Karma Kanda. तो कर्म कांड का पूरा हमने वो सिस्टम देखा था किस प्रकार संसार में हम लोग आए हैं तो हमारी कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं. वी नीड वाटर, फूड, एयर. सो एनीवे यू नीड दैट. सो ट्राई टू गेट दैट थ्रू यज्ञ by performing sacrifices to the devatas. So that's how that cycle was there. What was the cycle?
living bodies have they sustain on food gain. Food gain sustain is gained from What was the verse? Verse number 14. 3.14. Yeah, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवम्. All of us living entities, they subsist on the food grains. Food grains, they are coming from rain. Rain is coming from yajna. Yajna is coming from prescribed duties. Prescribed duties are coming from Veda. And Veda is coming from Krishna. Right? So that's how we reach the God. So that's how हमने पूरा analysis देखा था till verse number 16. And then from verse number 17 onwards, again there will be some change. So, sorry? थोड़ा सा वो मौसम ही वैसा है ना अभी, सर्दी का मौसम. उधर खोपली में तो yeah, not freezing. Yeah, kind of. Very cold. He is so very cold. 10 degree or what? Less than 10, 15? 8? मेजर किया था? Yeah, gets in the अच्छा, मोबाइल में दिखता है. खोपली में था उधर 20 रहेगा, 20, 18. एक स्वेटर से काम हो जाता. उसे कहते हैं गुलाबी ठंडी. So JV is like to enter JV, the temperature automatically feels that it's dropped to the degrees because it is so green and everything, and it's really well made. Really good. पालघर डिस्ट्रिक्ट, मिनी वृंदावन. हरे कृष्ण. So then after that, from verse number 17, let us read the verse number 17. Where is that? I gone to the 4th chapter. We also do. Yeah. Okay. So Krishna says, Yastu atmaratir eva svat atmatrittascha manava atmanneva cha santushtam tasya karyam na vidyate. Yeah, read the translation. But पढ़ लो, मौका मिलेगा सबको. But for one who takes pleasure in self, whose human life is one of self-realization, and one who is satisfied in the self only, fully satiated, for him there is no duty. Yes. Now this is describing about ज्ञान योगी. अभी देखिए, इस चैप्टर के बिगिनिंग में पहले बताया what is better for you, what is better for Arjun, कर्म योग. बोले कि तुमको ज्ञान योग करने का जरूरत नहीं है. देन फिर कहा आपको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर कर्म योगा, देन डू कर्म कांड, नीचे के लेवल में आ जाओ. बट अगेन कृष्णा इज नाउ कम अप. नाउ ही इज सेइंग इवन इफ यू थिंक दैट यू आर क्वालिफाइड फॉर कर्म कांड के लिए, तो क्वालिफाई कर दिया. बट कृष्ण कह रहे हैं डोंट डू कर्म कांड, डू कर्म योगा. And now in this series of verses, till from 17 till I think 27 somewhere, in the next 10 verses, he will tell, even if you think that you are qualified for Jnana Yoga, still perform Karma Yoga. And now in these 10 verses, he will tell who is Jnana Yogi. ज्ञान योगी मतलब बेसिकली कौन संसार से संन्यास ले सकता है. संसार में रह के कर्म करना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, और संसार से विरक्ति लेने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप विरक्ति के लिए क्वालिफाइड भी हैं, जो कि वर्णन यहाँ पे आएगा, कौन क्वालिफाइड है विरक्ति के लिए संसार से, फिर भी आप क्या करो, कर्मयोगी करो. दैट मीन्स इन वन सेंस ही इज सेइंग बेटर देन संन्यास इज बेटर इज हाउसहोल्ड लाइफ. अ डिटैच्ड हाउसहोल्डर इज मोर exemplary than a detached sannyasi who is living in the Himalaya for the preaching purpose. See, a yogi in the Himalaya, he may be living for his own self.
a householder who is living in the city but he is detached from the life but still working in this world is given more importance. Then the sannyasi. Yes. Why? Because 99.99% people will be living in the city only. Now who will inspire them to take the path of Liberation. liberation? कौन करेगा उनको? Sannyasi. अभी आप सब तो सन्यासी नहीं बन सकते ना. हिमालय में जाकर बैठ के तपस्या करोगे? नहीं कर सकते. So आपको कोई तो चाहिए यहाँ पे जो आपके साथ रह के आपको सिखाए कि कैसे संसार से निकलना है बाहर. समझे कि नहीं? So now, but in next 10 verses, Krishna is explaining who is that sannyasi, who is qualified to renounce, and he will kind of indirectly tell to Arjun, you are not qualified, even though he is qualified. Arjun is qualified, totally qualified to renounce the world. But फिर भी कहेंगे, still you stay here, for my sake. मेरी सेवा करने के लिए यहाँ पे रहो. So we will see some examples of who have stayed in this world for the sake of Krishna, right? So sometimes some duties are very difficult to perform, but still we perform because it pleases our superiors, and the pleasures of our superiors, they give blessings, and when you get the blessings, then you can get liberated from this world. ये अलग ही सूत्र है. ये मत सोचिए कि जंगल में जाके रिनाउंस करके फिर मैं लिबरेट हो जाऊंगा. That's not the way. It's an indirect process. When you perform the service, when you do your duty in obedience to your superiors, then you get the blessings. Then actually you are qualified to renounce the world eventually. पसीना आ गया अभी से, क्या हो गया? चक्कर आ गया, समझ में नहीं आ रहा है? हाँ. You are qualified to renounce, but don't renounce right now because you have family. You have to set an example, right? So that's how इस श्लोक में क्वालिफिकेशन दिया है कि कौन संन्यास ले सकता है, right? तो क्या कह रहे हैं इसमें? 3 शब्द दिए गए हैं. Who takes pleasure in the self only? Right now we are taking pleasure in what? We are taking pleasure in what? Light किसके लिए लगा है बाहर? ओए शादी के. शादी है वृंदावन टेरेस में. शादी है किसका? 14th floor is sun is getting. तो पूरी बिल्डिंग को लाइट लगा दिया. बिल्डिंग में लगा. हरे कृष्णा. I thought 31st वाला लाइट है. नहीं, इतना प्रेम नहीं है लोगों को. Okay, but still बड़ा शादी है. पूरी बिल्डिंग को लाइट लगा दिया. बिल्डिंग चारों तरफ लगा है. उसको जाके बोलना थोड़ा गीता ले लो और बांट देना शादी में. हाँ सही है. प्लीज अब ये बोलो मत, हो सच्ची एक्चुअली आज करने पड़ जाएगा शादी में. हरे कृष्णा. Yesterday I just gifted a Gita to my friend whose Now birthday was there. everywhere we go we are doing that only. गुड ना. So भगवान को प्रसन्न करने का तरीका क्या है? सेवा. He is doing सेवा by gifting Gita. Okay, so now he says the one who is taking pleasure in the self, जो अपने आप में संतुष्ट है. अभी हम लोग अपने आप में संतुष्ट हैं क्या? नहीं है. हमको संतुष्ट होने के लिए संसार की चीज़ों की आवश्यकता है इस समय. बराबर है क्या? हमको घर भी चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे चाहिए. अभी अगर अकेला है तो सोचता है अकेला हूँ, पत्नी नहीं है. पत्नी आती है सोचता है अभी बच्चे कब होंगे. बच्चे नहीं होंगे तो भी उदास हो जाते लोग. बच्चे होते हैं तो सोचता है बच्चों की अच्छी नौकरी कैसे होगी, फिर बच्चों के बच्चों कैसे होंगे, फिर वो सोचता है कि कहीं घूमने चले जाऊँ मैं. हाँ. फिर सोचता है कि कुछ अच्छे कपड़े पहन लूँ, तो उसके लिए संसार में काम करना पड़ेगा. So that's how right now our situation is we are not satisfied within ourselves. So we need so many external paraphernalia for our so-called happiness. बराबर है. So that means we are definitely not qualified for sannyas. As long as we are dependent on other sources for our satisfaction, that means we are not qualified right now. Right? So he says, whose human life is one of self-realization, and one who is satisfied in the self only, fully satiated, for him there is no duty. हरे कृष्ण. क्योंकि सन्यासी मतलब कौन है? जिसको कुछ काम धंधा नहीं है, आप ऐसा बोलते हैं, बट एक्चुअली उसको कौन सा है? सुपीरियर काम धंधा है. He has superior duty to perform, that is self-realization. To sit down in one place and meditate on the Lord. Can we do that right
now we can do, but for 1 hour 2 hour that's it. वो 2 घंटा भी मैं बोल रहा हूँ पिछले 2 साल से, वो भी टफ जा रहा है आप लोगों को, right? 2 hours meditation I am telling you, chanting of the Hare Krishna Mahamantra, right? That itself is becoming difficult. So how can you do for lifetime and whole day and night? So that means definitely we are right now not satisfied in Atma, right? So when person doesn't have craving for things which are external, he is satisfied within, he is qualified for renouncing the world, right? So primary adhikar for a person to renounce this world is internal satisfaction. When he is internally satisfied, he is just happy with his bhajan. अपना एक कोने में बैठता है, चैंटिंग करता है, कुछ किसी ने प्रसाद दिया तो खाता है, नहीं दिया तो वैसे ही बैठा रहता है. उसको मोबाइल का रिचार्ज नहीं चाहिए, उसको फेसबुक यूज़ नहीं करना है, ही इज जस्ट हैप्पी. आवर केस इज डिफरेंट. इस्कॉन के ब्रह्मचारी अलग कैटेगरी है, बिकॉज दे आर इन द प्रीचिंग वर्ल्ड. सो दैट्स हाउ दे मे यूज ऑल द फैसिलिटीज ऑफ बड़े बड़े मेंशन में भी रहेंगे, होटल में भी जाएंगे, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग एंड इट हैज़ साइड इफेक्ट्स ऑल्सो. उसके अपने परिणाम भी होते हैं अलग अलग. सो इतना आसान नहीं होता है बीइंग रिनाउंस्ड स्टिल लिविंग इन द सोसाइटी एंड ट्राइंग टू प्रीच. मतलब आपको डिटैच भी रहना है, साथ में प्रचार भी करना है. दैट्स अ वेरी टफ थिंग. इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे बहुत नहीं चाहिए दुनियादारी से, अपना एक जंगल में बैठते कोने में शांति से भजन करते हैं. सो दैट्स ऑल्सो ग्लोरियस. बट देन कृष्णा रिकमेंड्स हियर a life of a devotee who is trying to preach in the city, because the whole purpose is to deliver everyone, right? Zoe Mata ji santusht hai, she is qualified. Right? So these 3 things are there: Atma Ratir, Atma Truptaschan, Atma Santushta. Atma Rati, अपने आत्मा में ही क्या है वो? सुखी है. अभी इस समय हमारी रति कहाँ पे है? संसार की चीजों में है. आत्म तृप्तश्च, अपने आत्मा में संतुष्ट, तृप्त है. हम लोग ऐसे नहीं है. आत्म संतुष्ट, इवन दो यू मे सी these 3 terms almost similar but they are having different angles of आप संस्कृत शब्दों को देखेंगे ना लगेगा सेम है, लेकिन उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं. रति मतलब आसक्ति, काइंड ऑफ अटैचमेंट. तृप्त मतलब सेटिस्फाइड. अलग अलग हो गया ना शब्द. इंग्लिश में इतना उसको इक्विवेलेंट नहीं मिलता है एक्चुअली. आत्म संतुष्ट, सेटिस्फाइड is still looking same but still different, little different, right? Such a person has no duty to perform in this world. Tasya karyam na vidyate. So our Vedic scriptures, what they say is, if you are a part of society, if you are taking something from the society, it is your duty to give back. So if I am not a part of society, then I have no any obligations. मैं अगर कुछ लेता नहीं हूँ तो कुछ देना भी जरूरत नहीं है मुझे, राइट? आप अगर इस सोसाइटी के पार्ट है तो आपको देना पड़ेगा, बराबर है क्या नहीं? अभी सोचो ना, अगर मेरा सैलरी नहीं है तो मैं टैक्स क्यों भरूंगा? साधु हैज नो सैलरी, बराबर है क्या नहीं? तो टैक्स क्यों भरेगा वो? आप सैलरी कमाते हैं तो आपको टैक्स भरना ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट के लिए, बराबर है? समथिंग दिस इज एग्जांपल. नाउ देन ही सेज, yeah, of course in the purport Prabhupada says a person, now Prabhupada gives purport from point of view of a devotee. ये वर्णन एक्चुअली ज्ञान योगी का चल रहा है, लेकिन एक भक्त के एंगल से परपोर्ट देंगे प्रभुपाद हमको कि हमको कैसे रहना चाहिए संसार में. A person who is fully Krishna conscious and is fully satisfied by his acts in Krishna consciousness no longer has any duty to perform. Now this is talking about a devotee, any devotee, whether he is a renounced or household में रहने वाला कोई भी devotee हो, कोई भी भगवान का जो भक्त है, जो भगवान की आराधना कर रहा है, उसको कोई ड्यूटी नहीं है सोसाइटी में. उसको जरूरी नहीं है कि गणेश पूजा में जाना चाहिए, उसको जरूरी नहीं है कि अभी माता के चौकी लगे जाना ही पड़ेगा. He has no obligation because he is performing highest duty of performing the greatest welfare act. Who is supreme? Krishna is supreme, right? तो उसके लिए कर रहे हो तो उसको 1000 चीज़ों के ऑब्लिगेशन में पढ़ने का जरूरत नहीं है. बट स्टिल हम लोग जाते हैं बिकॉज टू सेट एन एग्जाम्पल कि वी आर विथ यू, डोंट वरी. अदरवाइज वो हर्ट हो जाएगा सामने वाले, बोलेगा यार मेरा भाई है क्यों नहीं आ रहा है माता की चौकी में. आई एम स्टिल विथ यू, बट द पर्पज इज टू इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, ड्यू टू हिज बीइंग कृष्णा कॉन्शियस ऑल इम्पायरिटी विद इन
is instantly cleansed an effect of many thousands of यज्ञ performances. तो अभी लोग क्या करते हैं, ये जो जितने भी रिचुअल किए जाते हैं ना घर गृहस्थी में, कोई भी रिचुअल, अभी बताइए ना आप कौन से रिचुअल करते हैं आप लोग घर गृहस्थी में? और बहुत सारे समय में, अलग अलग समय में अलग अलग रिचुअल किए जाते हैं, राइट? कुछ देवी की पूजा की जाती है, घर में कुछ बच्चे जन्म लेते तो उनका कुछ संस्कार होता है, या फिर विवाह संस्कार होता है, या फिर अंत्येष्टि संस्कार होता है. सो मेनी थिंग्स हैपन एंड इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो. थोड़ा बहुत पूजा आराधना करते हैं हम लोग, जो भी हमारे घर में देवी देवता रहेंगे या भगवान रहेंगे. ये सबका उद्देश्य क्या है? शुद्धिकरण करना अपने हृदय का. जबकि डिवोटी क्या करता है? रोज यज्ञ करता है. Every day he is performing 2 hour yajna of chanting the holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So सोचो ना, मतलब डिवोटी अगर सिस्टमेटिकली एवरी डे अगर अपनी साधना कर रहा है, हरे कृष्णा जूही माता जी बैठ जाओ. हाँ, अरे मौसी है अपनी मौसी. हरे कृष्ण. ओके बाय. Zoe. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ, गीता पढ़ने दो. सो एवरी डे इफ वी आर परफॉर्मिंग अवर साधना, जस्ट इमेजिन हाउ मच प्यूरिफिकेशन वी आर गेटिंग. नहीं तो इतने जल्दी इतना संभव नहीं है. इतने जल्दी पहचान लिया, बाप रे. हरे कृष्णा. रिवाइवल ऑफ द मेमोरी. नहीं, he wants to ask किधर थी दे दे. हाँ, गोद में लेके बैठ जाओ, सो जाएगी गोद में शांति से. बैठ जा. सो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, by such clearing of consciousness one becomes fully confident of his eternal position in relationship with the Supreme. His duty thus becomes self-illuminated by the grace of the Lord, and therefore he no longer has any obligation to the Vedic injunctions. Such a Krishna conscious person is no longer interested in material activities and no longer takes pleasure in material arrangements like wine, women and similar infatuations. So when you perform duty every day of doing our sadhana, प्रभुपाद ने बहुत सिस्टमेटिकली हमको प्रोग्राम दिया है of our purification. If we follow 4 regulatory principles, no meat eating, no intoxication, no gambling, no illicit sex, that itself is such purifying effect. इतना फॉलो करने से ही जीवन में इतनी शुद्ध, क्योंकि संसार में अशुद्ध के यही 4 कारण है. Any impurity anywhere you see, these 4 things are there, cause of impurity. ये 4 चीजें अगर हम निकाल दे, still we are not purified because still we have so many anarthas within the heart, right? Temptations है इन चीजों की तरफ जाने के लिए. So when we perform our bhajan, expose yourself to spiritual sound vibration. See, संसार में साउंड ही ऐसी चीज है जो हील कर सकती है. साउंड थेरेपी मालूम है ना? और ये जो क्रिएशन जब स्टार्ट होता है साउंड से स्टार्ट होता है. एवरीथिंग बिगिंस विद द साउंड. साउंड से शुरुआत होता है सब कुछ. बिना साउंड के संसार चल ही नहीं सकता. डेली लाइफ में बिना साउंड के कुछ नहीं हो सकता. और ये जो व्हाट्सएप है या फिर जो डिजिटल फॉर्मेट में हम लिखते हैं, दिस इज सटल फॉर्म ऑफ साउंड, बट साउंड ओनली. वॉट एवर वी राइट, दिस इज साउंड ओनली. बिना साउंड के कुछ भी इनिशिएट नहीं हो सकता है. सो दैट यू विल सी इन द श्रीमद् भागवतम व्हेन यू स्टडी. So that's why when we expose ourselves good amount of time every day to pure spiritual sound vibration, that cleanses the contamination in our heart, contamination of mode of passion, mode of ignorance, and eventually even mode of goodness will also be cleansed, and then you attain pure goodness. अगर goodness भी हमने इस संसार में प्राप्त कर लिया इन द मोड ऑफ गुडनेस, स्टिल यू आर नॉट फुल्ली इन रियलाइजेशन विद द लॉर्ड, बिकॉज आप ज़्यादा ब्रह्म साक्षात्कार तक ही पहुंच सकते हैं, बट उसके आगे परमात्मा और भगवान साक्षात्कार के लिए यू नीड समथिंग इवन मोर बियॉन्ड दैन गुडनेस. प्योर गुडनेस बोलते हैं उसको, वासुदेव शुद्ध सत्व बोलते हैं. सो दैट्स हाउ दिस इज द इफेक्ट. ऐसा व्यक्ति
संसार में रहते हुए भी सन्यासी है, राइट? दिस इज प्रभुपाद सेइंग पर्पट फॉर अस, बट एज पर द फ्लो ऑफ गीता राइट नाउ ऐसा व्यक्ति संन्यास ले सकते हैं. नाउ देन कृष्णा सेज, नाउ सच पर्सन, नाउ सी कृष्ण कैसे यू नो मतलब उसको क्या कहते हैं, ही इज सो एक्सपर्ट. एक चीज को बोल के फिर आपको उससे कन्विंस भी करा देंगे ना करने के लिए या करने के लिए. नाउ ही सेज नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृतेनः कश्चन ना चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् व्यपाश्रया कश्चित् अर्थ व्यपाश्रया. या रीड द ट्रांसलेशन. A self-realized man has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duties, nor has he any reason not to perform such work, nor has he any need to depend on any other living being. हरे कृष्णा. ये श्लोक पढ़ के ही आपको चक्कर आ जाएगा. ऐसे भी कहते हैं, फिर वैसे भी कहते हैं, फिर वैसे भी कहते हैं. A self-realized man, उसका डिस्क्रिप्शन किधर है? इन द प्रीवियस वर्स. Has no purpose to fulfill in the discharge of his prescribed duties. बराबर है, उसको कुछ संसार से लेना देना है नहीं. But then again he says, nor has he any reason to not perform such work. उसको संसार से कुछ लेना देना है नहीं, but फिर भी he has no reason to not do his duty. क्यों? उसका उत्तर आगे दिया है. Nor he has any reason not to perform such work, right? Of course, उसका आंसर प्रभुपाद ने पर्पट में दिया है. ऐसा क्यों कहा गया है बताइए आप मुझे. He has no need to perform duty, but still he has no reason to not do his duty. आप बोलेंगे ड्यूटी ने तो फिर क्यों ड्यूटी करने के लिए बोल रहे भाई उसको. Like in the previous verses, you said one has to perform his duties, even being in this world, in this material world, he has to perform his duties. But he is out of the world. He has no need to perform any duty. But everyone has to do some work, na? If you're breathing, also doing some action, so might as well do your duty. ठीक है, तो ब्रीदिंग करने के लिए ठीक है, तो भगवान की आराधना करके वो अपने ब्रीदिंग का बिल चुका देगा बस. उसके अलावा उसको और कुछ करना नहीं है. He has no reason to do duty like you or me. Especially your case. He don't have to go to office or maintain his family. तो है ही, तो मेंटेन क्यों करेगा? ऑफिस जाने का जरूरत है नहीं. But then again Krishna says, but still he has no reason to. अभी उसका ड्यूटी नहीं है तो फिर क्या ड्यूटी रहेगा उसका? या कुछ ड्यूटी? हाँ. Everything is like a bank. जैसे पैसा है, you got abundant, लेकिन कहीं ना कहीं it is going to finish ना, कहीं ना कहीं it is going to get empty. So you have to keep earning to make sure that that bank is continuously flowing. किसका? सन्यासी के लिए. So same thing. Now take example for sannyasi. What kind of money he has? So same thing for the sannyasi, that he has to continuously keep performing his duties and doing something so that his karma and his duties are always in the positive. थोड़ा पकड़ा उन्होंने actually. It is not going to go She has got it. negative. She got it related to some extent. Indirectly she is trying to say, now you are pure, but if you do something that pleases the Lord, you will become even more purer. समझ में आ रहा है क्या आप लोग? अभी right now see, अभी अगर मैं कुछ नहीं करूँगा, बैठ के अपना चैंटिंग करूँगा और अपना मंदिर में पड़े रहूँगा एक कोने में, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा किसी को संसार में, या न मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. बट देन अगर सेवा करके मैं थोड़ा और शुद्ध हो सकता हूँ और थोड़ा भगवान के पास जा सकता हूँ, तो क्यों नहीं करूँ सेवा. कृष्णा से दिन भगवद गीता 18 चैप्टर, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्. He says that whoever preaches this message is more dearer to me. So when Krishna is saying that he wants this to be given to people, if I help him, I become more dearer to him. Right now I am dear to him, everyone is dear to him. But if there is a chance to become even more dearer, जैसे घर में बच्चे रहते हैं, अपना रेगुलर कुछ कर रहे, सबका ठीक ठाक करेंगे, अच्छे रहेंगे. बट अगर समझो वो चैंटिंग करेगा तो you become more pleased, right? Wow, now he has started chanting. You give some extra blessings to him, right? So something like that. So अगर उसने धर्मशाला खोला तो Yeah, मतलब खोला, कुछ भी खोला, he is doing something more than what expected from him. थोड़ा एक्स्ट्रा जाके करता है वो. So that brings
more blessings, more purification. So in terms of businessman, more money, but in terms of a sadhaka, more purification, more blessings, right? क्योंकि उसका पैसा blessing है. So similarly here he is saying, अभी लेकिन उसका और आंसर नहीं हुआ पूरा. He has no duty, but still he has no reason to not perform duty, because the essential element here is, the main understanding is, वो कुछ नहीं करे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको, लेकिन अगर वो कुछ करे तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर वो कुछ करेगा तो भी उससे उसको तकलीफ नहीं होने वाली, क्योंकि वो डिटैच्ड है. आप समझे कि नहीं? जो व्यक्ति संसार से अनासक्त है वो अगर कुछ ड्यूटी करे या ना करे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. ना करे तो कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन अगर करे भी तो भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको संसार से आसक्ति नहीं है. लेट मी गिव एन एग्जांपल, देन यू विल अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल. आगे एग्जांपल गीता में भी आएगा, यहाँ पे भी. यू गो टू द थर्ड कैंटो ऑफ द, या थर्ड कैंटो, फोर्थ कैंटो ऑफ द श्रीमद् भागवतम, सॉरी फिफ्थ कैंटो. स्वयंभू मनु, ये तो मालूम है आपको, ब्रह्मा जी के पुत्र है स्वयंभू मनु. जो मनु संहिता वगैरह आता है उधर से आता है. या स्वयंभू मनु, उनके दो पुत्र थे, उत्तानोपाद एंड प्रियव्रत. दिस इज इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन. नाउ स्वयंभू मनु इज द किंग, ही हैज प्रजा एंड एवरीथिंग. उसके दो पुत्र हैं, राइट. उत्तानोपाद महाराज, ही इज एक्चुअली डूइंग सम तपस्या, राइट. एंड प्रियव्रत, ही इज ऑल्सो डूइंग तपस्या. तो क्या होता है कि एक समय प्रियव्रत, सॉरी स्वयंभू मनु जो है ना, उनका अभी एज हो गया 55. नाउ ही इज सपोज्ड टू टेक व्हाट? वानप्रस्थ, नॉट संन्यास, वानप्रस्थ. ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ एंड देन संन्यास. सो नाउ ही इज थिंकिंग, ओके मुझे अभी वानप्रस्थ लेना है, लेकिन अभी प्रियव्रत जो है वो तपस्या कर रहा है, उनका पुत्र है. प्रियव्रत, ही वाज डिसाइपल ऑफ नारद मुनि. नारद मुनि इज ब्रह्मचारी, तो उसको क्या बना देंगे वो? ब्रह्मचारी बना दिया. ब्रह्मचारी बनाते ऐसा नहीं है, गृहस्थ भी बनाते हैं, बट बिकॉज ही हैड द इंक्लिनेशन टू परफॉर्म सर्विसेज इन द ब्रह्मचर्य आश्रम, सो ही वाज डूइंग तपस्या इन द गंधमादन पर्वत में बैठ के तपस्या कर रहे थे. एंड ही वाज चैंटिंग हिज होली नेम्स एंड डूइंग हिज ब्रह्मचर्य लाइफ, व्हाटएवर लिविंग. सो उत्तानोपाद महाराज, सॉरी स्वयंभू मनु, he thinks that it is now time for me to renounce the world and go to forest and do my further bhajan and intensify my tapasya and bhajan, क्योंकि मेरा समय अभी संसार से पूरा होने जा रहा है. जो भी संसार में भोगना था, एंजॉय करना था, कर लिया. अभी क्या करूँगा मैं संसार में रह के? ये साक्षात्कार कैसे आएगा आपको? जब ट्रेनिंग होगा तभी आएगा. नहीं, he had a training of 25 years in the brahmacharya ashram. That training made him become detached and regulated in the grahastha ashram. नहीं तो grahastha ashram becomes such a mess in terms of realization of the atma, because लोग सोचते हैं कि अभी enjoy करने का टाइम है, right? But that's not the time to enjoy actually. Grahastha ashram is a life of great responsibility. You have kids to raise them, to make them human beings. आसान काम नहीं है उनको इंसान बनाना. इंसान बनाना मतलब उनको धर्म और कर्म और भक्ति सिखाना. इंसान बनाना मतलब ये नहीं कि आपने कोई स्कूल उसका अच्छा कर दिया, अच्छा नौकरी कर रहा है, कमा रहा है. दैट्स ऑल्सो एनिमल लाइफ, बिकॉज एनिमल्स दे ऑल्सो ट्रेन देयर चिल्ड्रंस. देखा नहीं कभी ट्रेनिंग देते हैं? नॉट सीन ना. तो ये ट्रेनिंग मतलब कोई खास ट्रेनिंग नहीं दे रहे आप लोग बच्चों को. जब वो खाली पैसा कमाना सीखेगा, संसार में रहना सीखेगा, कोई ट्रेनिंग है क्या? ये तो अपने आप ही सीख लेगा. The training is to make him human being, and human being means one who understands the responsibility of his life. What is the responsibility? To liberate himself from this material entanglement, right? तो वो आते हैं उनके पास, प्रियव्रत महाराज के पास, गंधमादन पर्वत में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं अपना, लेकिन तैयार नहीं है छोड़ने के लिए आश्रम. बोलते हैं I can't go back to home. I am ब्रह्मचारी, मुझे तपस्या करना है यहाँ पे, मुझे यही जीवन अच्छा लगता है. तो उनको समझाने के लिए कौन कौन आता है वहाँ पे? देखिए जरा, स्वयंभू मनु आते हैं, समझता नहीं है. उनको समझाने के लिए ब्रह्मा जी को बुलाया जाता है. ब्रह्मा जी इज द फर्स्ट लिविंग एंटिटी, फोर फादर्स ऑफ. और अब ब्रह्मा जी भी आ गए तो पूछते हैं, भाई किसका शिष्य है ये? नारद का शिष्य है. नारद किसका पुत्र है? ब्रह्मा जी का.
Now Brahmaji is in the Grihastha ashram. Narad Muni is in Brahmacharya ashram, right? तो नारद मुनि देख रहे हैं अभी ट्रेनिंग तो कड़क दिया है प्रियव्रत को, आश्रम छोड़ना नहीं तेरे को, ब्रह्मचारी बने रहने, राइट? अभी ट्रेनिंग कड़क है लेकिन अभी कृष्ण कौन अभी कौन आ गया? उसको नहीं पहचानते क्या? जानती है, उससे बातें करती है। हरे कृष्ण। ट्रेनिंग देना पड़ेगा। अरे बोल, बैठो इधर, बैठो, आ जाओ आ जाओ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, समझ जाती है। बैठो बैठो बैठो, कोई अंदर नहीं आएंगे, हमारे पास नहीं आ रहे हो। सो ट्रेनिंग, हरे कृष्णा। सो अभी इस तरफ कौन है? प्रियव्रत महाराज है, कड़क ब्रह्मचारी। अभी सोचिए नारद मुनि कितने कड़क है, उनका चेला कितना कड़क रहेगा। लेकिन अभी उपदेश कौन दे रहा है? ब्रह्मा जी, जो नारद के भी गुरु हैं और प्रियव्रत के पिताजी वहीं खड़े हैं, स्वयं मनु। ही इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, ग्रेट राज ऋषि। दैट्स ओके, वाटर ना चलेगा। सो सोचिए ना, नारद मुनि, स्वयंभू मनु और ब्रह्मा जी तीनों मिलके समझा रहे हैं, छोड़ दे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम में आ जा, क्योंकि अभी राजा चाहिए ना नेक्स्ट, और प्रिय तैयार नहीं है सुनने के लिए। देन दैट टाइम, तो भागवत में आता है, ब्रह्मा जी देन स्टार्ट्स प्रीचिंग, राइट? ब्रह्मा जी सेज, if a person is detached, then even in his household life he will not get entangled. This is talking for whom right now in this context? For Arjun. Even if you think you are qualified for Jnana Yoga, still perform Karma Yoga. Be in the world, because right now you are needed there. You are required there, right? आपकी जरूरत है वहाँ पे, आप छोड़ नहीं सकते वहाँ से। तो ऐसे कुछ ब्रह्मचारी को कभी सेवा भी आता है। वो हमारा गेस्ट डिपार्टमेंट वाला एक है ब्रह्मचारी, महाराज के जितने भी अभी एक गौरवाणी प्रभु ये सब आते हैं, सब ऑल इंटरनेशनल गेस्ट, ऑल लेडीज इंटरनेशनल, मतलब समझ जाओ कैसे डील करते हैं वो लोग। हरे कृष्णा, कैसे कपड़े पहनते हैं। एनीबडी हु इज फॉरेनर, हाउ दे हैव यू नो ड्रेस अप देमसेल्फ एंड हाउ दे टॉक एंड वॉक। ब्रह्मचारी को उसके साथ डील करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, बात करना पड़ता है। किसी का भी कुछ वीज़ा कुछ प्रोसेसने वाला है, कुछ फॉर्म रहता है, बैठे रहो उनके साथ बात करते रहो। कैसे कपड़े पहनते हो आपने देखा है ना, बट ही हैज टू डू दैट ड्यूटी। व्हाई? That's his duty. That's his. He can't say I am brahmachari, I can't deal with this lady, I can't speak with her, I can't walk with her. Hare Krishna. Then Brahma ji says, if you are detached, अगर आप अनासक्त है सांसारिक चीजों से, आप किसी से बात करो, किसी से डील करो, आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। Then he says, and you know this is one side, and the other side is, but if a person is attached, if person is attached, even if he is renounced order, that renounced order will not help him. So what is the main understanding here? अगर आप अनासक्त हैं तो आप कहीं भी रहो, आप उस आश्रम में प्रोग्रेस करोगे, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है। आप अगर अनासक्त नहीं रहोगे तो इवन इफ यू गो टू ब्रह्मचर्य आश्रम, रेनाउंस ऑर्डर, स्टिल यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस, राइट? सो दैट्स हाउ इट इज सेड। ये कहते हैं ब्रह्मा जी, इफ वन इज अटैच्ड ही हैज 6 वाइव्स। ये किसको कह रहे हैं? प्रियव्रत महाराज को कह रहे हैं। आप तो सोच रहे हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं, लेकिन आप जानते हो आपके साथ 6 पत्नियां हैं। कौन 6 पत्नियां हैं? 5 सेंसेस एंड माइंड। 5 जो हमारे सेंसेस हैं, और हमारे 5 सेंसेस एक पत्नी से भी खतरनाक है। एक पत्नी तो एक ही है। 5 senses means what? The ear, the nose, the touch, the tongue, the eyes.
आप जब जब करने के लिए बैठोगे तो 5 पत्नी आ जाएंगी आपके पास। थोड़ा सा देख लेना फेसबुक, या फिर थोड़ा कुछ संगीत सुन ले, या फिर थोड़ा गर्मी हो रहा है ना, थोड़ा एसी लगा देना अच्छा सा और अच्छे से बैठ जा चेयर पे, टच सेंसेशन, हाँ फिर हो गया उसका काम, राइट। या फिर जब करते ही स्टार्ट होता है माइंड के अंदर, मेनू कौन सा है आज प्रसाद में, मेनू आ गए बेचारा गरीब है, कुछ खाता नहीं, सिंपल कितना पतला हो गया है, डाइटिंग वगैरह करता है क्या? नहीं सब खाता है। अच्छा, अभी बढ़ेगा धीरे धीरे। सो एंड इस सब का किंग कौन है? माइंड। दैट्स व्हाई इट इज सेड, यू नो, 6 टोटल, भव्यास पत्न्या एव ग्रह पतंती। सो द पर्सन इज वॉकिंग विथ 6 वाइव्स, 6 पत्नियों को लेकर घूम रहे हैं। जब ये परिवर्त महाराज सुनते हैं, then he agrees, yes, what you say is right. Still he has resentment, is not ready, but it makes sense logically. Still he is not ready, but because it is order of superior person, so he just, you know, accepts. इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं यहाँ पे, he says, don't be resentful of those who are your well-wishers. Right? Sometimes your well-wishers, they may give some instructions which are very difficult to perform. But don't get angry upon them. Don't feel envious for them. Don't be jealous of them. Right? Actually, Supreme Personality of Godhead is well-wisher for everyone. ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी कह रहे हैं. And what has been ordained here is will of the Supreme Lord. So don't be resentful. It's the desire of the Lord that you come and take the position of a king and please perform your duties. और ये साथ में फिलोसफी देते हैं. फिलोसफी के बगैर समझेगा नहीं वो. ऐसा भी नहीं कि खाली फिलोसफी समझेगा, but still he has to make a sense of what he is going to do. And actually, then he comes back to the kingdom and takes the position of a king. And he gets attached also. इतना सब बताने के बाद भी, do not think that it is a very easy path to follow. So it is described in the 6th chapter, 5th canto Bhagavatam में. He becomes the king, he performs all his duties, पूरा सब कुछ संभालते हैं, gets attached to his wives, kingdom, बच्चे सब कुछ से attach हो जाते हैं. But because training है ना, strong, at a proper time he understands, oh my God, what has happened? क्या था मैं और क्या हो गया इस संसार में. Then he detaches himself. जब proper time आता है, निकल जाते हैं बाहर, सब कुछ छोड़ छाड़ के, पत्नी बच्चे सब कुछ छोड़ छाड़ के, in one, just one thought. अभी अपने को एक थॉट आने के लिए कितना टाइम लगेगा? कल से बंद, नो फेसबुक, नो यूट्यूब, नो सोशल मीडिया, नो व्हाट्सएप. हरे कृष्णा, सोच के चक्कर आ जाएगा नहीं. सो ऐसा नहीं होता है कि आप संसार अफेक्ट तो हो जाते हैं आप. यू विल गेट अफेक्टेड डेफिनेटली बिकॉज यू आर डीलिंग विद द मेटेरियल एनर्जी. सो जो ब्रह्मचारी डील कर रहा है गेस्ट के साथ इंटरनेशनल, उसका माइंड तो अफेक्ट होने वाला है. बट बिकॉज देर आर ब्लेसिंग्स ऑफ सुपीरियर्स, ही विल इवेंचुअली will come out of it and you will also get the experience of what is Maya. So जरूरी नहीं कि आपको लेना है जाके, but then he will get the understanding of what the world is and how dangerous it is. Right? How we utilize social media for benefit of our business. So we. Yeah, that is different thing. Yeah, that's what. I'm not talking about business. That's, I'm talking about your free time when you are just scrolling over, you know, थोड़ा मजा करते हैं. That is the time which can trap us. Hare Krishna. Right? So this is how यहाँ पे कहा जा रहा है. ये श्लोक का अर्थ ये है. Yes, that's true. What are you thinking? कुछ तो सोच रहे हैं. इंटरनलाइजिंग. Okay. ब्रह्मचर्य आश्रम में ना वो अभी. हो गया 25 खत्म हो गया. हाँ तो अभी अच्छा बोला कि गृहस्थ आश्रम में एंट्री करने वाला है. Right? So it is very difficult. तो इसलिए कहा जा रहा है कि उसको कोई ड्यूटी नहीं है, but still he has no reason to not perform duty. Why?
because he will not get affected anyway. Even though he will get affected for some time, but he can immediately come out of it. But because it is service, because पूरा यहाँ पे पर्पस क्या है? सेवा. जो चीज़ आपको सेवा करने के लिए मदद करती है वो आपको करना ही पड़ेगा, because that is what the goal of our life, to perform our duty and please the Supreme Lord and His devotees. क्योंकि आप भगवान के पास केवल ब्रह्मचारी बन के नहीं जाने वाले हैं. संसार में तो बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं, जानते कि नहीं आप लोग? कितने अनमैरिड लोग हैं संसार में, एंड दे लिव परफेक्ट सेलिबस लाइफ, पक्का सेलिबसी में रहते हैं वो लोग. कोई किसी लड़की से कुछ लेना देना नहीं, संसार सेलिब्रेटी. वो क्या भगवान के प्राप्त करेंगे? क्या नहीं करेंगे. Celibacy is not criteria or qualification to receive the grace of the Lord. You are celibate, that life may help you to perform bhajan more nicely, but then you have to perform the bhajan ना. नहीं तो क्या है, मंदिर में भी कोई कोने में पड़ा रह सकता है, प्रसाद तो मिलता है, कपड़ा क्या लगता है पहनने के लिए, एक ही कलर है, 5 साल से एक ही पहना तो भी कुछ पता नहीं चलता नया है पुराना क्या है, राइट? और क्या चाहिए उसको? नो नीड एनीथिंग. इंसान की जरूरत क्या है एक्चुअली देखा जाए तो? इफ ही इज वेरी सिंपल पर्सन, खाने के लिए कुछ प्रसाद चाहिए, पहनने का कपड़ा चाहिए, अगर सिंपल है तो. इफ इज नॉट सिंपल, इज कॉम्प्लिकेटेड, देन ही मे ट्राई टू सर्च मेनी अदर थिंग्स. बट सिंपल है तो क्या चाहिए? पड़े रहो अपने कोने में. बट दैट डजंट मीन दैट यू विल गेट द लॉर्ड, you will get the blessings of the Lord. No, because the goal is not to just lie down, I am detached. No, the goal is to perform service and eventually get attached to the Lord. कहीं तो आपको आसक्त होना पड़ेगा, राइट? नहीं तो आप अगर उस लाइफ से आसक्त हो गए, पड़े रहना कहीं भी से, तो अगले जन्म में हो सकता है आप इस संसार में वापस आ जाए, फिर किसी घर गृहस्थी इतना आलीशान बंगला महल मकान मिलेगा, आपको नौकरी करने की जरूरत है कुछ नहीं, पड़े रहो घर में एक कोने में. But then life after life you have to come back again and again, and it's always risky also, because जितने बार हम लोग संसार में आएंगे उतने लोगों से संग भी करेंगे ना. और किसी एक लाइफ में आपने किसी से संग किया जो आपको संसार से आसक्त बना देगा, तो हो गया आपका काम खत्म. कोई ऐसा दोस्त मिला बोलेगा चल शराब पी लेते थोड़ा सा, आपकी आसक्ति खत्म. So that's how it's a risky life, right? So that's how it is mentioned here कि इस तरह से आप ड्यूटी करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको करना है, बिकॉज यू विल नॉट गेट अफेक्टेड एनीवे, एंड एक्टिंग इन दिस वे विल व्हाट इट विल डू. नेक्स्ट वर्स में बताते हैं ऐसा करने से क्या होगा. श्लोक नंबर 18, या वी रीड द 18, वी रीड द परपोर्ट सम पॉइंट्स. एक श्लोक में ऐसा इतना अर्थ रहता है, फिर आपको ये समझ में नहीं आया तो आगे कैसे जाएंगे आप? Then you say, अरे गीता खत्म क्यों नहीं हो रहा है? गीता इज नॉट लाइक योर स्कूल का आप जो पढ़ते हैं ना, जॉनी जॉनी यस पापा. इट इज ए वेरी डीप फिलोसॉफी. इसमें भी अगर डिस्कस करने जाए तो और 4 दिन चलेगा, ये 4 क्लासेस, बट आई विल नॉट डू दैट. आपको मोर और लेस समझ में आ गया क्या उसका एसेंस है. सो प्रभुपाद सेज, a self-realized man is no longer obliged to perform any prescribed duty save and except activities in Krishna consciousness. अब ये बोल के प्रभुपाद ने क्या कर दिया? बॉल डाल दिया एक आपके इसमें, बॉम्ब डाल दिया. उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट उसको क्या करना है? कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज करना है. मतलब कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज मतलब क्या आ गया उसमें? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम सब आ गया, चैंटिंग, हियरिंग, सेवा सब कुछ आ गया उसके अंदर. सो एक्चुअली हमारा अस्तित्व उसके लिए बना हुआ है, भगवान की सेवा के लिए. उसके बगैर हम जो भी कर रहे हैं वो अभी माया है. somehow we are doing because करना पड़ रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लिया हमने अभी संसार से, राइट? नाउ यू हैव हाउस, यू हैव बिजनेस, यू हैव फैमिली, कॉन्ट्रैक्ट है वो, उसको तो अभी फुलफिल करना पड़ेगा. साइन किया है पेपर, तो भगवान बोलते साथ में थोड़ा जपा भी कर ले. जपा करते करते यहाँ से धीरे धीरे अपनी चेतना को बाहर निकाल लेगा तुम. फिर जब प्रॉपर टाइम आएगा, देन एक्चुअली यू विल देन एबल टू रिमेंबर द लॉर्ड, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर द लॉर्ड, राइट? So he says, Krishna consciousness is not inactivity, either as will be explained in the following verses. A Krishna conscious man does not take shelter of any person, man or demigod. Whatever he does in Krishna consciousness is sufficient in the discharge of his obligation. Right? तो आप बोलेंगे फिर आप लोग क्यों संसार में आके लोगों को बोलते हैं कि कुछ मंदिर में सेवा दो या दो? ये उनके लाभ के लिए नहीं है, ये उसके लाभ के लिए है.
when you ask someone to do some duty or seva, that is not for Yes. the Lord, that is for your benefit. Try to understand. नहीं तो आप बोलेंगे फिर इतना फंड रेजिंग होता है, अभी जीवी फंड रेजिंग से खड़ा हुआ है, राइट? So much fund is required. There's thousands of crores. The temple is run by funds only. So many volunteers they come. आप लोग भी जाते हैं, सेवा देते हैं. But this is for whom? ये सब फैसिलिटी किसके लिए बनाया गया है? For self. For ourselves, right? हम सबके लिए, ताकि हम सेवा करके शुद्ध हो जाए. नहीं तो क्या है? प्रभुपाद ने ब्रह्मचर्य आश्रम हिमालय में खोल दिया होता. बहुत सारे योगी साधु हिमालय में खोलते हैं ना. योगा इंस्टीट्यूट, वहाँ बैठे रहो, अपना करते रहो, राइट? उधर भी लोग डोनेशन दे सकते हैं. But still Prabhupada built his temple in main cities so that people get chance to associate with the sadhus and get familiar with the Vedic lifestyle and understand कि जीवन का लक्ष्य क्या है. Otherwise इतना कष्ट लेने का जरूरत नहीं था. बराबर है क्या? कितना कष्ट है शहर में एक टेम्पल को मेंटेन करना, कितना कष्ट है, बाप रे. So many things. ये आपका घर मेंटेन करने के लिए कितना कष्ट होता है. सोचो इतना बड़ा टेम्पल, इतना ऑर्गेनाइजेशन, so many employees, so many things, so much, इतना हैसल करके क्यों इतना परेशानी लेने का? Just to please Prabhupada and his worshipable Lord. उतना करने से हमारा काम बन जाएगा. So now after saying this he says तस्मात् असक्त सततम कार्य कर्म समाचर असक्त ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष. Read the translation. कर्मफल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म परम की प्राप्ति होती है. Yes, that's what we discussed, right? Yeah, we discussed this. Yeah, Prabhupada is so brilliant, he gives answer. अब जो आगे आने वाला है उसको पहले परपुर में बोल देते हैं, क्योंकि टेंशन है उनको कि आगे पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा. गारंटी नहीं आगे कितना पढ़ेगा वो, तो ये आंसर इधर ही है. The similar verse we have read in the second chapter also. Yeah, that's what Prabhupada does everywhere, in the Bhagavatam also, many of the times. That's so. So then now he will give example. मैंने तो ऑलरेडी आपको एग्जांपल दे दिया परिवर्त महाराज का, but he will give some another classic example of जनक महाराज in the verse number 20. कि अभी कोई पूछ सकता है ना, आप इतना सब बोले लेकिन कोई उदाहरण है क्या भाई? जो संसार में आके रह रहा है फिर भी सेल्फ रियलाइज है, कोई उदाहरण है? यस, देयर इज एग्जांपल. क्या हुआ इंग्लिश को घड़ी क्यों देख रहे? टाइम है अपने पास अभी भी. तो उदाहरण क्या है? इन द वर्स नंबर 20 जनक महाराज का उदाहरण है, राइट? कर्मण्येव संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रहम एवापि संस्पश्य कर्तुम अर्हसि. या रीड द ट्रांसलेशन. Kings such as Janak attained perfection solely by performance of prescribed duties. Therefore, just for the sake of educating the people in general, you should perform your work. यस, जनक महाराज इज वन ऑफ द महाजन. जो 12 महाजन है शास्त्र में, उसमें से एक महाजन है. महाजन मतलब द वन हु इज ऑथराइज्ड टू गिव वैदिक गाइडलाइंस टू ह्यूमन सोसाइटी, राइट? सो व्हाट इज द स्टोरी ऑफ जनक महाराज? कौन ऐसा उदाहरण है उनका कि इतना उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है भागवत में? पहले तो जनक महाराज कौन है? सीता देवी के फादर, राइट? भगवान रामचंद्र के. या so there is one story related to Janak Maharaj. Janak Maharaj actually used to hear Srimad Bhagavatam in his palace. तो उसमें बहुत सारे बाकी उस राजमहल में रहने वाले मंत्री, जो भी बड़े बड़े अधिकारी या पुरोहित पंडित जो भी, सब आके बैठते थे कथा में. Everyone used to gather there and hear the कथा. जो कथाकार आते थे कथा करते थे. But Janak Maharaj somehow he would come little late most of the time because of his managerial duties. राजा है तो फिर बहुत सारा ड्यूटी रहेगा ना, तो थोड़ा 10-15-20 मिनट, कभी 10-15 मिनट उनको